Good morning, students. Myself, B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now, in winter break, my class we already continue. Now, chapter number 12 for class 9th. Before it, we already introduced the Heron's formula. Now, Heron's formula is used for finding the area of triangle. In previous classes, we already discussed the area of the triangle is given by half into base into height. But here we use the formula triangle is equal to square root of s bracket s minus a and bracket s minus b and s minus c, where a, b, c are the three sides of a triangle. Opposite to side a is the a, now b and then c. वर्टेक्स ए के सामने हमने जो साइड ली है वो ए, उसके अकॉर्डिंग बी के सामने बी, सी के सामने हमने सी. सो एंड एस is the semi perimeter, means sum of the all three side is the perimeter and divided by 2, that is called semi perimeter. Now exercise 12.1 we already discussed for finding the area of simple triangles. Today we discuss about the exercise 12.2. This exercise used for applications of the Heron's formula in finding the areas of the quadrilateral. Now, for finding the area of quadrilateral, how can we find out? Suppose any one quadrilateral is given and one diagonal is given, A, B, C, D. Suppose three sides AB, BC and AC, one diagonal, these are given. So first we find the area of this triangle ABC, and also DC is given, DA is given and AC is again is given. So find the area of this triangle. So finally we add the quadrilateral is equal to triangle 1 plus triangle 2. So find the area of quadrilateral ABCD. तो यहाँ हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम फाइंड कर सकते हैं हीरोस फॉर्मूले के बेसिस पर, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको 4 साइड्स और 1 डायगोनल आपको गिवन होना चाहिए, या क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी उसको यूज़ करते हुए हमें फाइनली 1 डायगोनल एंड 4 साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है. उसके बेसिस पर हम ट्राइंगल का क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन एक्सरसाइज 12.2. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन a park in the shape of a quadrilateral ABCD, base angle has an angle C is 90 degree. First we draw. Now see the question number 1. Any one quadrilateral A, B, C and D, because angle C is the 90 degree, it is the given in this question, and AB is 9. AB is 9 meter and AB 9, BC is 12. BC, where is BC? BC is 12 meter, and also BC is 12 and CD is 5. CD is 5. CD is 5 meter. Okay, and finally AD is 8 meter. AD is 8 meter. So how can we find the area of this quadrilateral? We know area of this quadrilateral we find, but one quadrilateral is not given. तो अभी भी हमने कहा कि क्वाड्रिलेटरल की कोई भी प्रॉपर्टी, अब यहाँ एंगल C को अपन यूज करते हैं अगर 90, सो ज्वाइन BD, सो वी गेट ट्राइंगल BCD इज अ राइट angle triangle, and use the Pythagoras theorem, find the BD. BD is equal to square root of BC square and plus CD square, means perpendicular square plus base square, and where BD is the hypotenuse.
So what is BC? BC is the 12 and square of 12 is 144. Plus this is the 5. 5 square is 25. Now add these two numbers 5 plus 4 and 2 plus this one. So 169 and square root of 169 is 13. So that means this is the 13 meter. Now find the first V area of chord triangle BCD. BCD equal to square root of S minus A, S minus B, S minus C. फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है. मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ S. S आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं. व्हाट इज़ द S? फर्स्ट S इज इक्वल टू नाउ 12 प्लस 5 प्लस 13 एंड डिवाइडेड बाई 2. आपको ये कैलकुलेट करना है. मैंने आपको ये पहले भी कहा था, ये आपको पहले कैलकुलेट करना. चलिए एक बार इसको सीक्वेंस में ले लेते हैं अपन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. Before finding the area of triangle, first find the value of S. 12 plus 5 is the 17 and 17 and plus 13 is the 30 and 30 upon 2 is equal to 15. ये आपके पास में फर्स्ट वैल्यू आ गई. Then find the S minus A. S minus A is equal to 15 minus A. आप कोई भी साइड A ले लीजिए. 12 and then 12 is equal to 3 and now S minus B. S minus B equal to 5. So 15 minus 5 is equal to 10. And finally S minus C is equal to 15 minus 12 आपने ले लिया, 5 ले लिया, 13 आपको लेना था, तो 13 is equal to 2. Now find the area of quadrilateral. So quadrilateral is equal to, first use the formula S. What is S? S is 15 into S minus A. S minus A is 3. S minus B 10. S minus C is 2. मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा. ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है वही ट्रायंगल के लिए, और कुछ भी नहीं करना आपको. नाउ कैलकुलेट यूजिंग फैक्टराइजेशन. 15 को आप फैक्टर कर सकते हो 3 इंटू 5 एंड इंटू 3 एज इट इज. 10 इज 2 इंटू 5 एंड फाइनली 2 इंटू 5 एंड लास्ट 2. अगर पेयर बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 3 एक बाहर आ गया और एक 5 को आप बाहर ले सकते हैं और एक 2 को बाहर ले सकते हैं. बाद में नंबर कुछ बचता नहीं है. तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 एंड 10 इंटू 3 इज 30 मीटर स्क्वायर इज द फर्स्ट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं अपन. फर्स्ट अगेन S आपको मालूम ही है 15 and S minus A. This time you take the S minus A is the 9. So 15 minus 9 is equal to 6. सेकेंड इसके लिए S minus B, यहाँ हम ट्राइंगल ले रहे हैं BAD. 9 अपन ले चुके हैं, तो now you take the 15 minus 8. 15 minus 8 is the 7. नेक्स्ट S माइनस C. आपके पास क्या बचता है? आपने ये ले लिया, बचा आपके पास अगेन 13. सो सॉरी 13, दैट मीन्स 15 माइनस 13. 15 minus 13 is equal to 2. And finally triangle. This time you find out the area of triangle. यहाँ अपने सॉरी मैंने यहाँ पे quadrilateral लिख दिया, यहाँ आपको triangle लिखना है. ये अपने triangle लिखा है triangle. यहाँ आप triangle को नेम दे दीजिए triangle BCD. Triangle BCD is equal to this time triangle BAD is equal to square root 15. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 इंटू 5. नाउ 6 2 इंटू 3. 7 एज इट इज एंड 2 एज इट इज. नाउ फाइनली इस बार 3 का पेयर बन गया. तो अपन एक काम करते हैं,
3 अपन बाहर ले सकते हैं एंड 2 एक अपन बाहर ले सकते हैं और नंबर आपको मिल गया 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 5 एंड 7 तो मीन्स 7 इंटू 5 35 ये आपके पास रह जाता है. 3 इंटू 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 35. सो फाइनली कोऑर्डिनेटर ABCD is equal to means park ABCD, the area of this is the 30 plus 6 square root of 35 मीटर स्क्वायर. आप चाहें तो आंसर ये लिख सकते हैं, अदरवाइज 35 के जस्ट नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 है. 6 6 36. तो यहाँ पर 36 से 6 से जस्ट बिफोर जो नंबर है 5.9, आप चाहें तो यहाँ पर 30 प्लस आप इसको लिख सकते हैं 35 5.9 और इंटू 5.9 को इंटू करके इसको सॉल्व करके आप फाइनल आंसर मीटर स्क्वायर में आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अदरवाइज आप अंडर रूट में लिखना चाहें तो 30 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 35 मीटर स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. यहाँ पर S माइनस 15 माइनस 9 इज 6 इज करेक्ट. 15 माइनस 8 ये भी करेक्ट है. 15 माइनस 13 इज करेक्ट 2. सो 15 इज 3 इंटू 5 एंड 6 2 इंटू 3 7 एज इट इज 2 एज इट इज करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है 12.2 एक्सरसाइज सेम फॉर्मूला हम वही यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द हीरोज फॉर्मूला. बट हियर फाइंडिंग द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर समटाइम्स व्हेन ऑल 4 sides are given and one diagonal is given, then you can find the area of a coordinator using the Hero's formula. But here all 4 sides and one diagonal is not given, but one condition is given, this angle is 90. So using this 90 and use the right triangle, use the Pythagoras theorem, you can find the side BD. So finally all 4 sides are given, then BD is given and find the area of coordinator. So sometimes parallelogram is given, so use the property of parallelogram. Rhombus is given, use the property of rhombus. So use the any properties of coordinator when parallelogram, rhombus and rectangle and square is given. So our properties all properties of coordinator ये आपको ध्यान रखना है. टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर और टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर. एक क्वेश्चन अपन और करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर. सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD अगेन. सो फर्स्ट वी ड्रॉ ABCD. ABCD. AB is 3 now centimeter, this time is centimeter, and BC 4, now BC 4 centimeter, and CD is 4 centimeter, and now DA is 5 centimeter, and also AC is 5. This time AC is already given 5 centimeter. So simply same, first find the area of triangle ABC. 3 into 4 into 5 और S आपको कैलकुलेट करना ही है इसके लिए. तो मैं सिंपली यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि करने की बजाय अब आपको समझ में तो आ ही गया है, तो मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर ABCD इज इक्वल टू फर्स्ट फाइंड ट्राइंगल ABC एंड प्लस ट्राइंगल ADA. इन दोनों को प्लस करो और फाइनली यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD. नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है, आप इसको पार्ट में डिवाइड करो. यहाँ पे आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है, नेक्स्ट आपको एक रेक्टेंगल गिवन है और ट्राइंगल 2 ट्राइंगल्स आर गिवन है और थर्ड ट्राइंगल गिवन है. क्वेश्चन जरा लेंथी है. एक आपको सिंपली it is given that the Radha made a picture of the एरोप्लेन का एक पिक्चर गिवन है जिसमें ऑल पार्ट्स आपको गिवन है और एरिया आपको फाइंड आउट करना है अलग अलग पार्ट्स में. उनमें आपको फर्स्ट 2 ट्राइंगल दोनों सेम है, दोनों को इंटू 2 कर लो, एक ट्राइंगल फाइंड आउट करो और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. लास्ट ट्राइंगल जो है 5 और उसके बेसिस पर एक रेक्टेंगल गिवन है. रेक्टेंगल में भी आपको 1 साइड और एक आपको उसका बेस गिवन है, तो 2 साइड्स गिवन है, तो आप अदर 2 साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं.
और नेक्स्ट फाइनली लास्ट ट्रेपीजियम के अंदर आपको ऑल 4 साइड्स आपको गिवन है और सिंपली आपको 1 डायगोनल जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। आप ट्रेपीजियम फाइंड करके सबको प्लस करो, प्लस करने के बाद में सबका एरिया आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, अपने आप मज़ा आएगा। और नहीं आता है क्वेश्चन आंसर और या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछो। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ताकि इस सम को एक बार अपने आप ट्राई करके एक बार आप मुझसे पूछो। मुझे पता है आप पूछोगे नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहता हूँ, इसको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन ताकि आप खुद करें और आप अपने आप सॉल्व करें उसको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ट्रायंगल पैरेललोग्राम्स आपको गिवन है एंड द पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस and the same area. One triangle and one parallelogram have the same base and the same area. That means there is given that question number 4. Suppose we draw a parallelogram ABCD. बेस सेम है और उनका एरियाज इक्वल है तो हाइट भी इक्वल होगी, तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं ADA। और आपको गिवन है, दोनों का एरिया गिवन है और बेस सेम है तो बेस हमने सेम कर लिया। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30, 26, अब इसमें बेस कौन सा गिवन है एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, तो आपको ये 28 लेना है। 28 एंड 26 आप ये 26 ले लीजिए एंड देन 30 आप इसको 30 ले सकते हैं। ऑन द बेस फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, आपको ये परपेंडिकुलर जो है पार्ट ये आपको फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का। सिंपल आपको करना क्या, फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू यूजिंग द फॉर्मूला S minus A, S minus B and S minus C। S आप कैलकुलेट कर सकते हो इज इक्वल टू 28 प्लस 30 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, 6 8 प्लस 6 14 1 3 and 3 6 plus 2 is 8 upon 2. Now 42 is the S. Now what is S minus A? S minus A means 42 minus 28. 12 minus 8 is 4 and 3 minus 2 is the 1. S minus B. S minus B means 42 minus 30 is 12. And S minus C. S minus C means 42 minus 26. 12 minus 6 is 6 and 3 minus 2 is the 1, 16. So put the values in formula. S, first put S is 42 into S minus A is 14, S minus B is 12, S minus C is 16. Factorize 42 now means 42 2 into 21 means 3 into 7, ये फैक्टर्स हो गए 42 के। 2 into 3 6 and 6 7 जा 42 is correct. These are prime number. प्राइम नंबर्स में आपको फैक्टराइज करना है, ये आपको ध्यान रखना। 14 2 into 7 करेक्ट। 12 2 into 6 and 6 is 2 into 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 is correct. 16 2 into 2 2 2 जा 4 and 4 2 जा 8 and 8 2 जा 16। लास्ट, वैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप चाहे तो डायरेक्ट 4 बाहर ले सकते हैं, लेकिन अपन जिस मेथड से चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। चलो बाहर कौन कौन से नंबर आ रहे हो, 1 2 and 1 3 1 7 1 2 again 1 2 and again 1 2।
देखते हैं सर्कल जहाँ जहाँ बनाए कोई सर्कल छूट तो नहीं गया, यानी कोई नंबर अंदर नहीं है, यानी कि सभी आंसर आ गया आपका। तो फाइनली क्या करना है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 7 इंटू 3 इज 21, सॉरी हाँ 7 इंटू 3 इज 21। 21 और 16 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21 एंड 16 मीन्स 16 इंटू 21 मीन्स आपका हो गया 6 to 12, 1 2 प्लस 3 एंड ये 6, 2 इंटू 1 2 एंड ये 326। नाउ 326 it is the centimeter square, it is the area of a triangle। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। In this question given that area of parallelogram and area of triangle is same, that means you can find the what is the find height of the parallelogram। आपको find करना है height of the parallelogram। अगर हम एक काम करते हैं, first we write area of parallelogram is equal to area of triangle। So what is the area of parallelogram? Base into height, and area of triangle is half into base into height। जनरली हम इस फॉर्मूले को अगर यूज करते हैं, लेकिन यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट अपन एरिया पुट कर देते हैं 326 बिकॉज इट इज गिवन। बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे पैरेललोग्राम का कौन सा गिवन था 28, तो यहाँ अपन 28 ले लेते हैं, और हाइट अपन को यहाँ कैलकुलेट करना है, तो हाइट इज इक्वल टू 326 डिवाइडेड बाई 28। सो हाइट इज इक्वल टू, व्हाट इज हाइट, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 2 की टेबल से अगर करते हैं अपन 1 एंड दिस इज द 8 इज द 4, देन इट इज द 1 6 एंड देन now 3, 163 डिवाइडेड बाई 14, 7 की टेबल से अगर लेते हैं तो नहीं होगा, और फाइनली ये हाइट है, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर ऐसा है जिससे कि डिवाइड कर रहे हैं, ये बात चेक कर लेते हैं। 1 12 इज 6 एंड 6 इज 3 एंड इट इज़ द 1 एंड इट इज़ द 14। अब आपको इसको डिवाइड करना है, ये है आपका सेंटीमीटर इज़ द हाइट ऑफ है पैरेललोग्राम, लेकिन यहाँ इसको डिवाइड कीजिए और डेसिमल पॉइंट में आप इसको फाइंड आउट करो आंसर, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज। कैलकुलेशंस डिवाइड करना, यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट होता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर बाय यूजिंग द हीरोज फॉर्मूला। But Hero's formula used for the area of triangle, and but this formula sometimes we use the finding the area of quadrilateral when all 4 sides and 1 diagonal is given. There are 2 exercise 12.1 and 12.2 completed. And now some questions are be left for you, and solve it yourself. And any doubt, any problem, you can ask anytime, and just ask in WhatsApp and write the question number and exercise. Okay students, now thank you, have a nice day.